A very fresh and a good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. So, welcome back to our English grammar class. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Chadeshwar, and I welcome you all to our English grammar class. As you all know, students, that we have completed chapter 8 and 9 in your grammar textbook, that is Adventures with Grammar and Composition, and this is the third chapter which is from your PT3 syllabus and also the last one. Okay, so along with this chapter we would be done with our PT3 syllabus for grammar, and we are also done with our course book syllabus, that is unit 4 and 5, and you also have to refer to the worksheet, that is for worksheet 4 and worksheet 5. Okay, now let's start our today's chapter, which is simple future. What do you mean by future? Future means we are talking about tomorrow, right? For the things which have not happened yet. So when we are talking about future tense, we are referring to the time when the actions will take place. Okay, the actions are not done yet or didn't happen in past, but it is going to happen in future. Okay, so let's see over here what it is. GT won 20,000 rupees as a prize at a science fair. Here is what she plans to do to the money. I will buy a new pair of extendable arms for myself. So GT won 20,000 rupees and she is planning what she is going to do with that money. I am going to invest in the solar powered battery backup for myself, and I will get some microchips for Post. He likes to eat all kind of chips. So what do you think? What are these activities? Are they done yet or are they going to happen? Well, if you see, उसको 20,000 rupees मिल गए हैं, ठीक है? And now he is planning कि उसको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए. That means this action didn't take place, right? So all these actions are in future tense. In the same way, you also have to write down 5 sentences. What would you do if you would have won 20,000 rupees? What will you do if you win 20,000 rupees? और इसमें जो tense use करोगे वो कौन सा वाला use करना है आपको? Future tense use करना है. Okay, so this is your homework. आपको पूरा chapter explain कर दूँगी, उसके बाद आपको ये करने में problem नहीं आएगा anyway. Okay, so now let's see when are we going to use simple tense, simple future tense. ठीक है, हमको कब use करना है simple future tense को? First, when we are talking about the actions that have not begun yet. That means we are going to talk about the actions जो अभी तक हुई नहीं है start, which didn't start till now. Okay, जो अभी हो सकती है future में, after some time or maybe tomorrow or day after tomorrow or after 2-3 months or next year, right? वैसी वाली activities जो अभी तक हुई ही नहीं है. The two most common ways to express future time is by using will or be going to form before of the verb. मतलब हम future tense को कैसे present करेंगे? एक होता है will का usage और दूसरा होता है be going to. ठीक है, so how are we going to talk about future tense? एक होता है will, okay, और दूसरा जो होता है वो होता है be going to, और उसके बाद हमारा verb आता है. अभी याद रखना है आपको कि आपका जो verb है future tense में वो हमेशा base form में रहेगा. आपका verb कैसा रहेगा? base form, मतलब बिना कोई चेंजेस के, द वन विच वी यूज़ नॉर्मली इन द प्रेजेंट टेंस. ओके, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी अलग फॉर्म होता है. एक होता है बेस फॉर्म और एक होता है एस के साउंड वाला, राइट, जो हम सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं. लेकिन फ्यूचर टेंस में हम विल के साथ या फिर इज़ गोइंग टू के साथ या फिर एक और वर्ड होता है जैसे कि शैल, ठीक है, वो भी हम देखेंगे. सो इन तीनों के साथ विल, शैल एंड टू गोइंग टू, बी गोइंग टू. For that we are going to use the base form of the verb. ठीक है, the main verb used in this sentences will always be in the base form. See, it's written over here also कि आपको कौन सा वाला form use करना है? Base form. Now let's see
when are we going to use, what are the incidents when are we going to use simple future tense. To talk about the intentions. intentions का मतलब हमारा इरादा, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उस चीज़ की प्लानिंग अगर हमने पहले से कर ली है तो हम उस बारे में बात करने के लिए विल या शैल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. शैल इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ विल लाइक वी सॉ इन द चैप्टर on models. Okay, so you might have already studied that we can use shall instead of will, but you need to remember that normally we use shall along with I or we. मतलब हम लोग shall ज़्यादातर किसके साथ यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वरना बाकी सबके साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. यू विल या फिर दे विल, ही शी इट विल, आई विल और वी विल भी लिखते ही हम लोग, बिकॉज दैट इज़ द मोर कॉमन वे टू राइट डाउन द फ्यूचर टेंस. बट येस, यू कैन यूज शेल अलॉन्ग विथ आई एंड वी. ओके. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स गिवन ओवर हियर. रमन विल टॉक टू हर Ramani will talk to her teacher. Grandma shall go to the dentist this Friday. The letter will reach John tomorrow. Now, in all these three sentences, if you notice that the verb over here is talk, right? बातें करना. और उसके पहले हमने क्या ऐड किया है, will. वैसे ही shall के बाद ऐड हुआ है go. और लेटर विल रीच टू जॉन टुमारो, तो विल के बाद रीच क्या है, आपका वर्ब है. तो आपका फ्यूचर का विल के साथ का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, विल प्लस वर्ब विच हैज़ टू बी इन द बेस फॉर्म, मतलब V1 वाला फॉर्म. ठीक है. समझ में आया विल कैसे यूज़ करते हैं. अभी सी द D1, वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल. नाउ ओवर हियर इफ यू नोटिस्ड they have used are going to see. जैसे कि हमने पढ़ा be going to यूज़ करना है. अभी यहाँ पे be क्या है आपको पता ही होगा. be मतलब verb का फॉर्म है ना. तो हम be किस तरह यूज़ करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस है तो is am and are, और पास्ट टेंस है तो was and were. ओके. लेकिन ये जो फ्यूचर टेंस है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग गोइंग टू यूज़ करते हैं. इसका मतलब क्या है कि हम करने वाले हैं. ठीक है. तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बी का फॉर्म इज़, एम एंड आर. ओके. नाउ यू नीड टू डिसाइड व्हेन आर वी गोइंग टू यूज़ आई इज़, एम एंड आर. आपको पता है एम हम लोग यूज़ करते हैं आई के साथ, है ना. फिर ही यूज़ करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन के साथ, मतलब ही शी एंड इट. और यू वी एंड दे, उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. वी यूज़ एम विथ आई, ही शी और इट. इन तीनों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़. और यू, सॉरी, I'm so sorry dear. Okay, if you write you, we और they, इन तीनों के साथ हमें क्या यूज़ करना है, बी का फॉर्म आर. ठीक है. तो आपको याद रखना है आई के साथ हमेशा एम जाता है, उसके बाद गोइंग टू लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे. अगर आपका थर्ड पर्सन है, मतलब ही शी इट है, या फिर नाउन्स है, ठीक है, जैसे कि किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, या फिर थिंग और प्लेस और एनिमल का नाम है, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ इज़. एंड फॉर यू, वी एंड आर, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो हम आर ही लिखेंगे. ठीक है. और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इन सब के लिए हमें आर यूज़ करना है. ओके. सो गोइंग टू के अंदर हम फॉर्मेशन क्या रखेंगे, बी, मतलब बी वाला वर्ब, उसके बाद गोइंग टू लिखेंगे, एंड द थर्ड थिंग वुड बी वर्ब, मेन वर्ब.
जो हमारा बेस फॉर्म रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन वाइल यूजिंग गोइंग टू। शेल में सेम ही रहता है, जैसे विल यूज़ करते हैं उसकी जगह पर शेल यूज़ करते हैं, और विल की जगह पर गोइंग टू यूज़ किया जाता है। उसके साथ जो बी का वर्ब होता है वो आपको सब्जेक्ट को ध्यान रख के लिखना है। लेट्स सी एग्जाम्पल डी, वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल। नाउ ओवर हियर यू कैन सी गोइंग टू यूज़ किया है, ठीक है, और आर यूज़ किया है। अभी आर क्यों यूज़ किया? बिकॉज हमने हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वी, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और फिर जो वर्ब है यहाँ पे वो है हमारा सी, ठीक है, और वो कौन सा फॉर्म है? बेस फॉर्म है, ठीक है। इन द सेम वे ई, आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक। सो हियर दे हैव यूज्ड गोइंग टू और साथ में एम यूज़ किया है बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज आई। सो आई के साथ एम जाएगा, और जो हमारा वर्ब है विजिट, दैट इज अगेन इन द बेस फॉर्म, दैट इज V1. ओके, let's see the second one. When are we going to use simple future? When we predict future events, that means किसी चीज़ के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं या ऐसा बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर आप क्लाउड्स देखते हो, इफ़ यू सी द क्लाउड्स एंड इट इज़ वेरी क्लाउडी एंड फिल्ड विथ ब्लैक क्लाउड्स, राइट, सो आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कि हाँ अभी बारिश होने वाली है, राइट। सो यू कैन राइट इट विल रेन टुडे और इट इज़ गोइंग टू रेन, मतलब अभी बारिश होगी। दे विल बिल्ड अ हॉस्पिटल ऑन दैट प्लॉट एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड अ हॉस्पिटल हियर। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, यू माइट हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर कि हम जिस चीज़ के लिए एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करते हैं, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वही चीज़ जो होगी ही होगी फ्यूचर में, ठीक है, तो हम गोइंग टू यूज़ करते हैं। और जो चीज़ हम लोग ऐसा मानते हैं कि इट कैन हैपन इन फ्यूचर, उसके लिए हम लोग विल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये अभी यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाया है, बट यू माइट हैव स्टडीड दैट थिंग बिफोर। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. Before that, we just see that we can write will in the shortened form. Shortened form मतलब apostrophe double L, इसका मतलब होता है will, ठीक है, जो हम लोग सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो। ओके, रिमेंबर दैट, आपका सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो ही हम उसके साथ लगाएंगे, वरना आपका नाउन है तो उसके साथ नहीं जाएगा। ओके, I will invite John for the lunch. Now if you see over here, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है I, which is a pronoun, तो उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी डबल एल लगाया, मतलब I'll मतलब का होता है I will। वैसे ही शिवरमन will come on Saturday. Now over here in your textbook it is showing that you can write it down, so maybe it is possible, but normally we don't write it in this way. हमको will पूरा ही लिखना रहता है, but it is written over here. Third one is they will arrive on Wednesday. So यहाँ पे भी they हमारा प्रोनाउन और सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने डबल एल अपॉस्ट्रॉफी लगाया हुआ है। She'll ring us when she reaches China. The same thing is written over here. Now let's see the negative sentences. Negative sentences is very easy. Okay, the only thing you are going to do is add not, ठीक है। विल के बाजू में भी आप नॉट ऐड कर सकते हो, शेल के बाजू में भी नॉट ऐड करोगे, और वैसे ही इज़ गोइंग टू या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू है तो उसके बीच में नॉट ऐड करोगे, ठीक है। सो टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस वी ऐड नॉट आफ्टर विल और शेल और आफ्टर द बी वर्ब इफ़ वी आर यूजिंग बी गोइंग टू। सो ये आपको याद रखना है कि जब हम सेंटेंस में विल और शेल लिखते हैं तो हम विल नॉट या फिर शेल नॉट, ठीक है, ये लिखते हैं। और अगर मान लो आपका बी गोइंग टू यूज़ हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्म यूज़ हुआ है, तो अगर आप इज़ लिख रहे हो तो इज़ के बाद नॉट लिख सकते हो और उसके बाद गोइंग टू। इन द सेम वे एम नॉट गोइंग टू या आर नॉट गोइंग टू, और हर एक का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि विल का हो जाता है वोंट, ठीक है, और शेल नॉट का हो जाता है शैंट। वैसे ही इज़ नॉट का इज़ंट होता है, आर नॉट का आरंट हो जाता है ना।
So you need to remember that you can use the short form if you want to. Okay. The letter will not reach John tomorrow. अभी will not की जगह पर यहाँ पे आप won't भी use कर सकते हो. That is the short form. I shall not tell you this again. See, if you see the verb reach भी हमारा बेस फॉर्म है, वैसे ही ये सेकेंड सेंटेंस में shall not यूज़ किया है और उसके बाद tell है जो हमारा बेस फॉर्म है, और shall not की जगह पर आप shan't यूज़ कर सकते हो. In the third sentence is not going to rain. It is not going to rain. So here after the be verb जो is है उसके बाद not add किया और उसके बाद going to लिखा है, और फिर हमारा verb है जो base form में है. ठीक है. In the same way, questions, we will replace will or the be verb before the subject. You have learnt in past tense and present tense कि हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले ले लेते हैं और सब्जेक्ट बाद में, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी बेस फॉर्म में ही रहता है. ठीक है. तो वैसे ही अगर सेंटेंस में आपने विल यूज़ किया है तो विल को आगे लेना है, और अगर बी वर्ब है मतलब इज एम आर है तो उसको आगे ले लेना है. ठीक है. विल द लेटर रीच जॉन टुमारो. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी हमने पहले विल यूज़ किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद रीच जो हमारा वर्ब है. ठीक है. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है. इन द सेम वे यू सी द सेकेंड वन, विल द लेटर नॉट रीच जॉन. दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. नाउ इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि विल नॉट साथ में लिख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल नॉट वी कैन राइट वोंट द लेटर रीच जॉन. ये भी चलेगा. ठीक है. मतलब ये नॉट जो है उसको हम विल के बाजू में लिख सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट इट बिफोर द वर्ब. यू कैन राइट इट अलॉन्ग विथ विल ऑल्सो. ओके. दैट इज ऑल्सो द राइट वे टू राइट डाउन द आंसर. सो यू कैन ऑल्सो राइट विल नॉट द लेटर रीच जॉन और विल द लेटर नॉट रीच जॉन. ओके. एंड इज इट गोइंग टू रेन. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस सेंटेंस दे हैव यूज्ड द बी वर्ब. इज क्या है हमारा? बी वर्ब है, इज एम आर. तो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू रेन जो है सेंटेंस उसके अंदर इज़ हमारा वर्ब है तो उसको आगे ले लिया, देन सब्जेक्ट विच इज़ इट, एंड देन गोइंग टू रेन. ओके. सो आई होप कि आपको नेगेटिव क्वेश्चंस एंड कैसे हम लोग फ्यूचर टेंस में विल, शैल और गोइंग टू यूज़ करते हैं वो आपको पता चल गया होगा. और आपको याद रखना है कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं विच हैज़ नॉट हैपेंड येट और डिडंट स्टार्ट येट, एंड ऑल्सो टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रूफ और एविडेंस वी कैन मेक इट आउट कि अभी आगे क्या होने वाला है. राइट. सो फॉर ऑल दोज एक्शंस ऑल्सो यू कैन यूज़ फ्यूचर टेंस. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज ए. Make predictions using the pictures below. In your sentences use be going to along with the expressions in the box. यहाँ पे बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं. राइट. और वो फ्रेजेस को आपको फ्यूचर टेंस में यूज़ करना है. और वो फ्यूचर टेंस आप कैसे दिखाने वाले हो? बी गोइंग टू के फॉर्म में. मतलब इज एम आर आपको सब्जेक्ट देख के लिखना है. ठीक है. सो हियर विल सी द फर्स्ट वन, द स्टोन, और उसके साथ ब्रेक द विंडो. तो आप क्या लिख सकते हो? The stone is going to break the window. Okay. Let's see the second one. The woman, और यहाँ पे क्या लिखा है? And what can you see in the image? The woman is going to. The woman is going to borrow a book फ्रॉम द लाइब्रेरी. है ना. वो लाइब्रेरी में ही खड़ी है तो हम लिख सकते हैं कि द वुमन इज़ गोइंग टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. इफ़ यू सी ओवर हियर वी हैव यूज्ड इज़, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फीमेल. है ना. वैसे ही स्टोन भी हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसीलिए उसके साथ भी हमने इज़ यूज़ किया था. लेट्स सी द थर्ड वन. द बॉय डैश. नाउ व्हाट इज़ द इमेज? I think the branch is going to break. So what will happen? The boy is going
to fall from the tree. Okay, and the last one, the girl, what is she trying to do? She's trying to drink milk. So what will we write? The girl is going to drink the milk. Okay, आपको समझ में आ गया ये एक्सरसाइज? आपको इसके अंदर सिर्फ इज गोइंग टू यूज करना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज बी. Here is Ruxana's planner for next week. Write sentences to describe what she will do on each day of the week. यहाँ पे planner है पूरे week का. You have to write down the sentences and you have to write down what she will do. मतलब आपको यहाँ पे क्या use करना है? Will use करना है. Okay? और आपको negative और positive sentences बनाने हैं future tense में depending on what it is given over here. See, आपको पहले मैंने पहला वाला करके दिया हुआ है कि मंडे क्या करने वाली है. शी इज़ गोइंग टू मीट द प्रिंसिपल. सो वी कैन राइट रुखसार विल मीट द प्रिंसिपल ऑन मंडे. इन द सेम वे यू आर गोइंग टू डू ऑल द 7 रिमेनिंग 6 सेंटेंसेस. लेट मी जस्ट डू वन नेगेटिव फॉर यू, जो है यहाँ पे वेंसडे नथिंग ओनली अटेंडिंग क्लास. सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो आंसर के अंदर? So you can see that she is going to attend only class and nothing else. So you can just write that she will attend classes on Wednesday. She will attend only classes on Wednesday. अभी इसमें नेगेटिव जैसा कुछ है नहीं वैसे कि आप बना सकते हो. So you can do the remaining by yourself. It's very easy. जैसे मैंने पहला वाला किया है, अभी पहले में मैंने रुखसार लिख दिया है. So you can use she, that is pronoun for her, for रुखसार, in all the sentences. You don't need to repeat the word rukhsar again and again, and you need to write down all the sentences in which you are going to use will and the verb that would be in the base form. Okay, so this is your homework. And let's see the last one, that is exercise C. There is one error in each of the following sentences. ठीक है, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलती है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है और उसको रेक्टिफाई करना है. लेट्स सी द फर्स्ट वन, द डॉग गोइंग टू जंप ऑन द पोस्टमैन. नाउ इफ़ यू सी दिस सेंटेंस, दे हैव नॉट यूज्ड द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. उन्होंने बी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो यूज़ ही नहीं किया है. अभी डॉग क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़. सो रेक्टिफाइड सेंटेंस क्या होगा? द डॉग इज़ गोइंग टू जंप ऑन द पोस्टमैन. Let's see the second one. The girl is go to switch on the radio. Now if you see over here, they have used the be verb, लेकिन going की जगह पर go लिखा हुआ है, so वो गलत है ना. तो हम लोग क्या लिखेंगे? The girl is going to switch on the radio. Third one, grandma flying to Dubai next Wednesday. Now दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट वेंसडे, राइट. तो अभी फ्लाइंग तो नहीं लिख सकते, वो तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, राइट. तो इसमें ये चीज़ गलत है वैसे. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ग्रामा इज़ गोइंग टू फ्लाई. ठीक है, फ्लाइंग नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखेंगे? इज़ गोइंग टू फ्लाई टू दुबई नेक्स्ट वेंसडे. नाउ स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दैट ये वाला जो आंसर है, वो जब मैं आपको PDF भेजूंगी तो वो रिसोर्स बुक में जो आंसर है वो गलत है, तो आप चेंज कर लेना. ठीक है, ये सही वाला आंसर है. ग्रामा इज़ गोइंग टू फ्लाई टू दुबई नेक्स्ट वीक. फोर्थ वन, पीटर नॉट गोइंग टू स्टडी इंजीनियरिंग. सो नॉट गोइंग टू, अभी यहाँ पे क्या गलती है? उन्होंने बी वाला वर्ब यूज़ नहीं किया है. सो पीटर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे. तो आपका आंसर होगा Peter is not going to study engineering. Fifth one, Shiva visit his aunt next month. Now here they have just wrote visit, nothing else, right. लेकिन वो next month होने वाला है, तो हमें future tense बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? will. Shiva will visit his aunt next month. Sixth one, I am go to see my doctor tomorrow. This is again the same mistake as in second one. Go
गोइंग टू की जगह पर गो यूज़ किया है, राइट। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर टुमारो। आप सब में नोटिस करना कि सब में आपका जो वर्ब है वो बेस फॉर्म ही रहता है, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। एंड 7th वन, ही विल मीट्स यू एट द रेस्टोरेंट। नाउ सी इन दिस सेंटेंस उन्होंने जो वर्ब है हमारा मीट, ठीक है, उसको चेंज कर दिया है, एस का साउंड है उसमें, तो वो तो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या लिखना होगा, ही विल मीट you at the restaurant. So students, I hope that you are clear with all the 3 exercises. You have to do the second one by yourself. Anyway, I would be sending the answers for all 3 exercises in the PDF. If you have any doubts, you can write down to me personally on my WhatsApp number, or you can call me if you have any doubts, okay? Or else we would be clearing the doubts in our live class. Okay, thank you and see you soon, students.